فوراً بعد فخر ذاکرین عمدۃ الذاکرین ذاکر جناب حبیب رضا حیدری آپ بنی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جہاں پہ آیتیں اترے وہ گھر حسین کا ہے، جہاں پہ آیتیں اترے وہ گھر حسین کا ہے، جہاں جھکتے ہوں پیغمبر وہ در حسین کا ہے۔ بدن سے کاٹ کر قاتل جسے جھکا نہ سکے، یزید مان گیا کہ وہ سر حسین کا ہے۔ بابا سے بلند سلوات۔ پیچھے ہمیں پیچھے کرو عالم کی میں کریے ایسے ٹھیک نہیں کرنا۔ درود پڑھے بابا سے بلند۔ اجازت ہے بھائی اپنے وقت سے کم پڑھنا ہے، بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح ہی سفر کرنا، نہ بھی پڑھوں تو آنا ضروری تھا۔ مقروض ہے وہ سانس علی کی، جو یہاں پہ زمانے کو بتاتی ہے کہ ہر مقدر میں علی نہیں ہوتا۔ ساتھ والے بھی شعراء تشریف فرما ہے، ممنون بھائی، اور بڑے عزتدار چہرے آنکھوں کے سامنے۔ دو پیغام ہیں، آپ کی امانت ہے، وصول کریں، اور بی اے صاحب کے حوالے منبر۔ علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام۔ ساتھ والے بھی جتنی دیر بھی میرے سامنے بیٹھنا، سر نہیں ہلانا۔ آج کل پتہ نہیں چلتا سر ہلانے والوں کا کس پارٹی سے تعلق ہے، میری مجبوری ہے۔ ہاتھ اٹھے تو پتہ چلتا ہے یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہے۔ نتیجہ دوں، علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، کہ جو زمین پہ چلتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اپیل میں نے کر لی ہے، کھلے ہوئے چہرے ہیں، مجھے آپ کے روشن چہروں کی قسم، آپ کے روشن دل کی قسم، جس کو علی کی محبت نے کعبہ بنا دیا ہے، علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، کہ جو زمین پہ چلتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ میں اسے رزق بھی لے کر خدا نہیں کہتا، علی نے روک دیا ہے مجھے خدا کے لیے۔ یہ حلالیوں کے ہاتھ ہے، سارے مل کے علی حق۔ آپ کی کیا بات ہے؟ یہ علی کا نعرہ حشر کا تنہا سہارا ہے۔ اس کے ساتھ قوت صرف کیا کر۔ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بندے علی کا کھا بھی رہے ہیں اور علی کو بھونکتے بھی ہیں۔ آپ شانی صاحب جی کافی دور دراز سے راول پنڈی سے چہرے دکھائی دے رہے ہیں مجھے، عزت داروں کا ہجوم ہے۔ آپ جی شکر گزار، حسین کی مہارازی رکھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ذرا یہ لائیو مجالس نے چہرے دکھا دیے ہیں، چھپے ہوئے تو شروع سے تھے۔ آج کل ہر بندہ روزہ بچانے کی کوشش میں ہے۔ ایسے ہی ہے، سارے روزہ بچانے کی کوشش میں ہے، لیکن پتھر کے سینے سے اس کا چشمہ پھوٹ ہی جاتا ہے۔ دل سے دور ولایت ہو تو اللہ روٹ ہی جاتا ہے۔ پیچھے والے بھی جس کا چہرہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، پتھر کے سینے سے اس کا چشمہ پھوٹ ہی جاتا ہے۔ دل سے دور ولایت ہو تو اللہ روٹ ہی جاتا ہے۔ جتنی مرضی سحری کر لے اور نماز قرآن بھی پڑھ لے، دل میں بغض علی کا ہو تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا۔ شکر گزار ہوں۔
के सीने से उसका चश्मा फूट ही जाता है। दिल से दूर विलायत हो तो अल्लाह रूठ ही जाता है। जितनी मर्जी शहरी कर ले और नमाज कुरान भी पढ़ ले, दिल में बुग़्ज़ अली का हो तो रोजा टूट ही जाता है। शुक्रगुजार आप ही क्या बात है। अच्छा मौलवी कुछ ज्यादा समझदार है। नबी फरमाते हैं आइली जो ईमान की हालत में तुम्हारा लिखा हुआ नाम पढ़ ले उसके आंखों के गुनाह माफ हो जाते हैं। और ये नमाज हो में लगा हुआ हैरत की बात है। अच्छा जिसे देखना सवाब हो, जिसे सुनना सवाब हो, वो नमाज में आ जाए तो बातिल हो जाती है। समझदार बैठे हो मेरे सामने। अब तो ये शर्तें भी लगाने लग गए कि हम शर्त लगाते। कल की बात है, ये अली वलीउल्लाह की बात। मैंने कहा कल के अंथे अली की विलायत तो रूहों पे वाजिब थी, रूहें कल की बात है। हाथ उठाना अपनी तो रूहों को जिस्म नसीब नहीं हुए थे जब अली हो रहा था। हाँ, ये कल की बात नहीं, इसमें एक राज है। वो जिसे सलमान कहा जाता था, वो मस्जिद में आए तो 10 बंदे भी पीछे आ गए। उन्होंने कहा हम इसकी शिकायत लेकर आए हैं। नबी ने फरमाया कैसी शिकायत? उन्होंने कहा सरकार हम काफी दिनों से ना इसके साथ नमाज पढ़ रहे हैं, हमने बड़ी तवज्जो की है, वाजिब नमाजें तो हमारे साथ पढ़ लेते हैं, हम सुन्नत में लग जाते हैं, अगली सफों में जाते हैं, अली का चेहरा देखता रहता है। सर उठाना मेहरबानी है आपकी। जैसे नबी ने सुना फरमाया सलमान जवाब दे। 7 चक्कर मस्जिद नबवी के लगाकर नबी की नालैन चूम के कहता हबीबे इलाही कसम आपकी रियाजत विला की हुई जा रही है। अली देखता हूं मैं मस्जिद के अंदर इबादत खुदा की हुई जा रही है। अब ये शर्त लगाते क्या बात आज मैं पहली दफा जनाब नू देख लिया। ये जितने ने जाकर जितने बैठे ये मेरे हथा का पौधा है जिन्हें खजाना है ना मैं दाद दे रहे इस वास्ते कि जनाब नू फखर हो जाए भई कंबर साहब का पोतरा चगिरद 100 साल 2 साल जिंदगी है मेरी जाकरी दे परिवार जिन्हें दावत दे रहे तेन फखर होना चाहिए कि इस बंदा मैनू पे दाद देता शुक्रगुजार। मैं दाद तेन देना तेरे लफ्ज़ां क्या बात है? बहुत अच्छे खुदा वो है। अच्छा खुदा वो है जो कतरे पे पैसे क्या बात है? खुदा वो है जो कतरे पे जो कतरे पे पैसे आम करे। नबी वो है जो सारी खुदाई का इंतजाम करे। काबा वो है, काबा वो है जिसको सजदा हाथों अली वो है जिससे काबा भी खुद शुक्रगुजार, मेहरबानी आपकी। बंदे कहते हम शर्त लगाते हैं ये जो टोला है ये जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा शर्त से घबराता है। अच्छा 5-7 बंदे रह गए जिनके मयार पे मैं पूरा नहीं उतरा, मुझमें कमी होगी, उनका मयार बुलंद है लेकिन मजलिस वो मुफ्त में सुन रहे, दरूद और नारे से दूरी इख्तियार की हुई है, उनकी भी दाद और दुआ मिल जाए।
انہوں نے کہا ہم شرط لگاتے ہیں یہ ہیں ہی جہنمی. میں نے کہا شرط سے نہیں گھبراتا, ایک مہربانی فرمائے کہ ذرا شرط ہماری مرضی کی رکھ لے کہ گردن کو کٹانے کی یہاں شرط لگا کر بخشش کا مجھے اور بھی سامان دکھا دے, میں تجھے جنت میں دکھا دیتا ہوں کتا, تو دشمن حیدر کوئی انسان دکھا دے. اب بولے ہو آپ کی کیا بات؟ اجازت ہے نا دو باتیں ہو. ایک رمضان ایسا بھی آیا, ایک رمضان ایسا آیا سبحان اللہ. کہ سلمان نبی کے قدم چوم کے کہتا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ رمضان میرا یادگار ہو جائے. جتنے گزارے ہیں سر اٹھانا مہربانی ہے. یہ الگ بات ہے, بندے تو بغض علی میں اندھے ہو گئے ہیں. مہینہ رمضان کا اللہ کا مہینہ ہے, روزے اس میں رکھے جاتے ہیں لیکن رجب کے افضل ہو جاتے ہیں. کیا کہنے, کیا چار پانچ کہنے. بندوں کو میری بات سمجھ آئے سبحان اللہ. ہاں جی, یہ آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے. وہ سلمان پوچھ رہا تھا تو کسی نے کان لگایا تھا, اس کا ہمسایہ بھی ساتھ تھا. اس نے کہا یہ تو کوئی راز لے گا. نبیوں کے نبی نے کہا سلمان رمضان کو یادگار بنانا چاہتے ہیں, جی مولا سب سے الگ ہو گئے. فرماتے کوشش کر علی کی دعوت کر. میں نے لٹی رتائی تو کرنی نہیں ہوتی, جو میرے سامنے آ جاتی میں نے وہی پڑھنا, پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا. ہو سکے تو علی کو دعوت پہ بلا. سبحان اللہ. مسلمان بوڑھا تھا, اٹھا چلا, وقت لگ گیا. جو تیز ترین تھے نا وہ پہلے ہی چلے گئے. یا علی کل کا روزہ ہمارے پاس افطار کریں گے. الوہیت کے ہاتھ میں دستخط کر دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی نے قبول کر لیا, کل روزہ تمہارے ہاں ہوگا افطار. دوسرا بھی پیچھے, دو پہلے پہنچ گئے, آہستہ آہستہ سلمان بھی آ گیا. یا علی کل کا روزہ. علی نے دستخط کیے, انہوں نے دعوت بھی دی, شور بھی دیا. وہ 70-72 بندے ہو گئے, ایک افطاری. کیا کہنے, کیا کہنے. یہاں پہ بی اے صاحب اگر ایک ہی علی ہوتا تو پھنس ہم بھی گئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دعوت سب کی, دستخط ید اللہ قبول ہو گئے. اب جو جس نے سب سے پہلے دعوت دی تھی وہ صبح اترا کے چل رہا تھا. مجھے یہیں پہ سمجھ نہیں آ رہی, اتنی نمازیں پڑھ کے تو نہیں اترایا, علی کو دعوت پہ بلا کے اترا رہا ہے. بولنا میرا ساتھ دے نہیں. میں نہیں جانتا کس کا چہرہ اتر جائے گا, کس کا مقدر سمجھ جائے گا. اب وہ اتنا کے چل رہا ہے. ساتھی نے پوچھا کیا ہوا, زیادہ عبادت کر لی. اس نے کہا نہیں, رات علی افطاری پہ میرے ہاں تھا. اس نے کہا مسجد کے سامنے جھوٹ بولتے. اس ہاتھ والے بھی ویسے ہی واہ کر دیا کرو. جب یہاں بیٹھتے ہو نا بات نہ بھی سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا دیا کر, علی روٹی رکھ ہی دیتا ہے. بستاتا وہ ہاتھ جو علی کی بارگاہ میں پھیل نہ سکے. اس نے کہا مسجد کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی. کل علی میرے پاس تھا. دوسرا آیا, اس نے کہا لڑ کیوں رہے ہو. اس نے کہا یہ کہہ رہا علی میرے پاس تھا, جبکہ میں مسجد نبوی کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی میرے ہاں تھا. اس نے کہا تم دونوں جھوٹے ہو, تم دونوں جھوٹ بولتے ہو, علی میرے ہاں تھا. بات بڑھتی بڑھتی وہ سارے آ گئے جو مسجد کی طرف آ رہے تھے اتراتے ہوئے. بات پھیلتے 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 سلمان تک آ گئے. اب سلمان نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو. سلمان کہتا ہے تم جو کہہ رہے وہ میں سن رہا ہوں لیکن علی میرے یہاں تھا. سلمان کا کہنا تھا وہ آیا کہ بس جس کے مقدر میں معراج والے علی سے ہاتھ ملانا ہے. نبیوں کے نبی آئے, سب کو سنا,
कोई कह रहा मेरे हाथ था, कोई कह रहा मेरे हाथ था। सलमान भी दावेदार हो गया मेरे हाथ था। उधर से 2 शहजादे भी आए। जब सुना फरमाया नाना आप जानते हैं ना रात माँ ने बाबा को घर से निकलने नहीं दिया। जागना मेहरबानी करना यार, रात माँ ने बाबा को घर से नहीं निकलने दिया। हम बाबा के साथ थे। अब रसूल मुस्कुरा के फरमाते तुम्हारे यहाँ भी अली होगा, लेकिन अली मेरे साथ था। अली मेरे साथ था। अब सबकी आंखें फट गई जब मोहम्मद का दावा है कि अली मेरे साथ था। हर कोई कह रहा था अली मेरे पास था, अली मेरे पास था। अब मोहम्मद मुस्कुराए, कहा मेरे पास भी था, उसके पास भी था। मैं भी कह रहा अभी मेरे कदम चूम कर जिब्राइल पैगाम सुना गया है कि वहां भी था। जब सबने सुन लिया ना कि अली सबके यहाँ था, उस वक्त नबी ने फरमाया तुम जो रोज रोज आके पूछते थे कि वो हाजिर और नाज़िर कैसे है, आज के बाद ना पूछना, जैसे अली आया वैसे वो हाजिर है। जैसे हर घर में अली था। तो बंदों को मान जाना चाहिए ना कि इतने मोतबर सहाबा ने भी 72 जगह पे अली मान लिया है। अब जो कुछ कुछ हमारे हैं ना, थोड़े थोड़े हमारे भी लगते हैं। मर जाना चाहिए उस बंदे को जो सोचता है अली रोटी देता कैसे है। मैं एक मिसरे कहने लगा, इनकी अलामत है बड़े प्यारे। अली ना पढ़े तो इनका इखलाक बड़ा अच्छा है। हाँ मैं अलामत बताने लगा हूँ। और गुंगा भी यहाँ पे बोलेगा, पत्थर रख फट के किरचियों से अली के नारे बुलंद होंगे। यानी कि अली ना इनके सामने पड़े, इखलाक भी बड़ा अच्छा है। बड़ी तलकीन करते हैं इबादतों की, सब कुछ बताते हैं। उधर अली पड़ा नहीं, या गली का मोड़ मोड़ते कहते शिरक हो गया है। जबकि उस लाशरीक को अपना ही घर अली को देते हुए शिरक नजर नहीं आया। जागना यार, मेहरबानी है यार। इसी से पूछना कभी जाकर कि 5 नमाजें पढ़ता है, 3 काबे की तरफ रुख कर ले, 3 मस्जिद की तरफ, तो फौरन रो के कहेगा तुझे ख्याल नहीं आया। जानते नहीं नमाज काबे की मोहताज है। उस वक्त गिरेबान पकड़ के कहना इतना पता है कि नमाज काबे की मोहताज, ये नहीं पता काबा अली का मोहताज है। क्या कहने, शुक्रगुजार हुआ आपका। मैं 4 मिसरे नहीं तेरे अकीदे का तर्जुमा सुनाने लगा। कुछ चेहरों पेशानियों पे मेहराब रोशन है, इनकी अलामत बताने लगा। ममनून भाई तशाहद के पुजारी हैं, बिला से बच के चलते हैं। ना 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 मेरी मांगी हुई खैरात है, तू सर हिलाता रहेगा, मैं तेरे इंतजार में यही मिसरा कहता रहूंगा। तशाहद के पुजारी है, विला से बच के चलते हैं। तशाहद के पुजारी है, विला से बच के चलते हैं। बड़े मकरू नमाजी है, खुदा से बच के चलते हैं। ये मयार है आपका, ये मयार में अलामत बताने जा रहा हूं। बड़े मकरू नमाजी है, खुदा से बच के चलते हैं। और अली के दुश्मनों की इस जमाने में अलामत है, वफादारी दिखाते हैं, वफा से बच के चलते हैं। क्या कहने, क्या कहने, वफादारी दिखाते, वफा से बच के चलते, बच के चलते हैं। हमें कोई एतराज ना होता इन पर, लेकिन बात आगे बढ़ती बढ़ती उस आंगन पे आ गई। एक लफ्ज है मुस्तहब, जो अली के साथ जोड़ना जा रहा है। उसका मतलब जो होता है आप जानते हैं कि जिसकी गवाही दी जाए तो ठीक है, लेकिन इसकी मिन्नत करके पूछना कि तेरे पास कोई ऐसा वाजिब है जिसके एक दिन में 9 बेटे मारे गए हो। इतना ही मैंने मैंने इतना ही पढ़ना था। कामरान भी ये सब तशरीफ रखते, एक लंबी फरिश्त ज़ाकरीन की आज के मालिक हमाद के रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफा फरमाए, उनके वालिद का साया इसके सर पे हमेशा कायम रखे, ये नस्ल आबाद रहे। मुझे अली की इज्जत गवाह बनाकर एक जुमला कहना,
कभी अली का खर्चा गिना? हम गदीर का जश्न मनाते हैं, आप भी जश्न ही सुनते। मेरे पास वो चैप्टर मौजूद है। गदीर के ऐलान के बाद 7 दिन तक मोहम्मद रोते रहे। 7वां रोज आया जो उसके इरादे के सिवा बोलती नहीं, तो उसके साथ बोली, बाबा हक पहुंचा दिया, क्यों रो रहे हो? मोहम्मद रो के कहते, बेटा अली के एहसान बड़े हैं, मैंने इसकी विलायत का ऐलान किया। बाबा क्यों रो रहे हो? फरमाते इसकी विलायत बचाने के लिए बेटा चाहिए। मेरा कुल असासा ज़हरा है। रो के कहती, बाबा तेरा बेटा नहीं, मेरा हसन जो है, मेरे हसन के जनाजे पे तीर लगेंगे, इसकी विलायत रहेगी। तो जिसे मुस्तहब कह रहा है ना, ये वादे हो रहे हैं। बाबा मेरा हुसैन तीनों के मुसल्ले पे नमाज पढ़ेगा, अली की विलायत रहेगी। मोहम्मद के रोने की आवाज ना रुकी, तड़प गई, बेसाख्ता रो के कहती, बाबा मेरी ज़ैनब की चादर नहीं रहेगी, इसकी विलायत रहेगी। अजरुकमन अल्लाह। मुझे एक रवायत पढ़नी है जो इसी से मिलती है, और इसी पे आपको सलाम कर जाऊंगा। हर आंख में आंसू आ गया है, इतना ही रोना। एक दुआ किया था, बैनुल हरमैन में खड़ा था, ये सब शाहद है, गवाह है। जैसे 14 लफ्ज उतारते हैं मुझ हकीर पर, ऐसे ही एक दुआ नाज़िल हुई बैनुल हरमैन में। मैंने वहीं पे मांगी, आपको हदिया कर रहा हूँ, तोहफा दे रहा हूँ, दुआ किया कर, जब कब्र में अली की जियारत के लिए आंखें खुले ना, तो उन आंखों में अली की बेटियों की चादरों के आंसू हों। हम पहला पुरसा दे के कहीं आएगी, तेरी ज़ैनब की चादर के बड़े अरमान। मैंने एक जुमला कहा, मैं पढ़ के चला गया। हाफिज तसद्दुक साहब मालिक ने कसाया हमारे सर पे कायम रखे, उन्होंने मेरे बात पढ़ना था। रजी भाई ने टेलीफोन करके कहा कि राय अली इमरान आप जुमला कह के चले गए, हाफिज साहब अभी तक रो रहे हैं। जो अली से नहीं बोली वो अली के लिए बोली है। 14 ये हाय कबूल फरमाई। सिवाय का मैं हुसैन के किसी काम में ना रहो, तू जाकिर का मोहताज नहीं, ये तो सिलसिले बन गए हमारे। तुम्हारी रूह ने पहले गम हुसैन मनाया है, फिर जिस्म नसीब हुआ है। अली की इज्जत शाहद है, कूफे का चौक पहली मर्तबा। अली की बेटी जब शहजादी बन के, अब तुझे कीमत बताऊं, अली का खर्चा दिखाऊं तुझे। जब पहली बार शहजादी बन के आई ना, तो अली के हाथ में बीबी के महमल की मुहार थी। चौक में रोक के कहा, ज़ैनब बेटा अमारी का पर्दा हटा। बीबी फरमाते मैंने पर्दा हटाया। अली फरमाते बेटा मैं आपको कूफे के बाजार दिखाना चाहता हूँ। तड़प गई ना, रोक के कहती, बाबा ये गलियां बाजार तो बेटों को दिखाए जाते हैं। अली फरमाते हैं शहजादी बन के आई है ना, वक्त बदल जाते हैं। जब तू दोबारा आएगी ना, ना तेरे सर पे चादर होगी, ना तेरे हाथ आजाद होंगे। इसी चौक में तेरा बाबा अली तुझसे मुलाकात करेगा। वक्त बदल गया, मारा गया अली अकबर। उसी कूफे के चौक में एक मेहमान रवायत करता है कि मैंने देखा एक बीवी जिसके बाल खुले हुए थे, उसके सर का लहू कूफे की जमीन को रंगीन कर रहा था। बंधे हुए हाथों से वो बीवी कभी दाएं देखती थी, कभी बाएं देखती थी। या एक खून रोने वाला करीब आया, उसने सवाल करके कहा, फुफी अम्मा हमारा कौन रह गया है? अब किसका जो मातम कर सकते हो? हमारा कौन रह गया है? किसका रास्ता देख रही है? उस वक्त अली की बेटी ने कहा, सज्जाद, और जब मैं पहली बार कूफे में आई थी ना, तू 3.5 साल का मेरे महमल में गवाह है ना, इसी चौक में मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था, और जब मैं दोबारा आऊंगी और मुझसे मुलाकात होगी। और सज्जाद सच्ची जुबान वाले को देख रही हो, बीबी के लफ्ज कहने थे, अली के रोने की आवाज बीबी ने सुनी। बीबी ने एक लफ्ज कहा जो मातमी आए हो, जैसे बाप को देखा, तड़प के कहती, बाबा बाबा तेरी विलायत बचाते बचाते मैं
میرے سر سے چادر اتر گئی ہے اور بابا تیری ولایت والی اذان کے بعد اور میرے اکبر کے جگر میں برسی لگی ہے اور بابا گواہ رہنا میں قاسم کے ٹکڑے چنتی رہی ہو لیکن تیری ولایت قائم رہی ہے. مسجد کا اعلان سن لو 21 رمضان